Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start chapter number 5, factors and multiplies. So now we will start our exercise 5.9. But before starting our exercise, first we will see what you had learned in our last classes. So what you had learned in your last classes, students? First you had learned about the multiplies. Then property of multiplies. How many property of multiplies? 5 property of multiplies. Then after odd and even number. Which is the odd number and which is the even number? A number which is multiple of 2 is an even number is called even number. A number which is not multiple of 2 is called an odd number. Then after factors. So what is the factor? A factor of number divide the number without leaving a remainder. A factor of number divide the number without leaving a remainder. Then next is the factor tree. This is the diagram of factor tree. Then prime and composite number. Prime and composite number. So what is the prime number and which is the composite number? Number which have only two factors. Number which have two factors. Which two factors? 1 and the number itself. 1 and number itself are called prime number. Are called prime number. Number which have more than two factors. Number which have more than two factors are called composite number. Number which have more than two factors are called composite number. Then next is the property of factors. How many property of factor? 4 property of factors. Then twin prime number. Which is the twin prime number? 2 prime number which differ by 2 are called twin prime number. Then next is the common factor. What is the common factor? Suppose we are taking two numbers of factor. For example, 12 and 50. So what is the common of 12 and 15 in factor? 1, 3 and 1, 3. This is the common. Then highest common factor. Highest means SCF. So which is the highest means which is the big number from 1 and 3. So 3 is the big. So our SCF is the 3. Then two number which have only 1 as the common factor. Two number which have only 1 is the common factor are called co-prime. Two number which have only one number is the common factor is called co-prime. Then lowest common multiplies means LCM. After take out multiples which for example 3 or 4. So here take out the multiples. So then after which is the common number? 12, 24 and 36. This is the common. So we want LCM. LCM means lowest. So which is the number is small? From 12, 24 and 36. 12 is the small means LCM is the 12. Then next is the prime factorization. What is the prime factorization? A factorization in which every factor is the prime is called prime factorization of number. Every number we want a prime. Prime means a number which have only two factors. Which two factors? 1 and itself number. So this is called prime. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? हमने कोई भी नंबर लिया उसके जितने भी फैक्टर्स हैं हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए. सो प्राइम नंबर मीन्स 1 and number itself. फॉर एग्जांपल 48 यहाँ पे टू फैक्टर्स निकाले 48 के 4 and 12. सो नाउ 4 and 12 बोथ आर द कंपोजिट नंबर. अभी हमें दोनों को क्या करना है? प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर निकालेंगे. नाउ 4 into 12.
4 के क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू टू। अगर हम 2 इंटू टू करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। नाउ दैट बोथ 2 आर द प्राइम फैक्टर। नाउ 12 को हम प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू सिक्स, 2 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलता है। यस, नाउ दैट 2 इज़ द प्राइम नंबर। अभी 6 को हमें प्राइम में कन्वर्ट करना है। सो 2 इंटू थ्री, 2 और 3 क्या होता है, 6 होता है। सो नाउ दैट 2 एंड 3 इज़ द प्राइम नंबर। सो 48 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 2 एंड 3। दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। देन दिस इज द डिविजनल मेथड। ठीक है, ये कौन सी है, डिविजनल मेथड है। यहाँ पे 20 है। सो 20 को हम प्राइम फैक्टर्स के साथ डिवाइड करेंगे। 2 इज़ द प्राइम नंबर। सो सबसे छोटा क्या है, 2 प्राइम नंबर है। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। सो हमने क्वेश्चन नीचे लिखा है और जो क्या है डिविजिबल है 2, वो हमने क्या किया है, ऊपर लिखा है। देन नाउ 10 भी क्या है, अभी कंपोजिट नंबर है तो हमें 10 को भी कन्वर्ट करना है प्राइम में। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना आता है, 5 आता है। सो नाउ 5 इज़ द प्राइम नंबर। सो 5 को 5 के साथ डिवाइड करने के बाद हमें क्वेश्चन कितना मिलता है, 1। सो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 20, 2 2 एंड 5। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, नाउ exercise 5.8 done in last period. Then SCF. So now what is the SCF? Highest common factors. For example here 6 and 18, 6 और 18 के हमने क्या किए हैं, फैक्टर्स निकाले हैं डिविजनल मेथड से। ठीक है, देन आफ्टर टेकआउटिंग फैक्टर 6 के हमें क्या फैक्टर्स मिले हैं, 2 एंड 3 फैक्टर्स मिले, 2 और 3। देन 18 के फैक्टर्स निकालने के बाद हमें क्या मिला है, 2 3 3। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 18। नाउ इसमें से जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 एंड 3 दिस इज द कॉमन, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 6। So now this 6 is the factors of 6 and 18, means this is the HCF of 6 and 18 is 6. ठीक है, now we will start our exercise 5.9. Find the HCF by prime factorization method. Now I am solving question number 1, 2, 5 and 8. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 8 मैं सॉल्व करके दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 दिस इज होमवर्क फॉर यू। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, 20 एंड 48. क्वेश्चन नंबर 1, 20 एंड 48. ओके, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स निकले हैं 2 to 5। कैसे निकाले हमने, 20। ओके, 20 2 से डिवाइड होता है। यस, अगर हम 2 के साथ 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है। सो विल राइट डिविजिबल 2 हियर एंड क्वेश्चन 10 इज द हियर। नाउ 10 2 के साथ डिवाइड होता है। यस, हाउ मेनी टाइम, अगर 10 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलता है 5 और यहाँ पे 2। नाउ दैट 5 इज़ द प्राइम नंबर। 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो अभी हम 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है, 1। सो हमारे 20 के क्या फैक्टर्स निकले हैं, 2 2 5, 2 2 5। ठीक है, नाउ 48 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 48 2 के साथ डिवाइड होता है, 48। सो 2 2 सा 4, 0 8 एंड 2 4 सा 8। कितना मिला है, 24। सो हम क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे, 24 यहाँ पे और डिविजिबल 2 यहाँ पे। नाउ
24 2 के साथ डिवाइड होता है? यस, अगर हम 24 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन 12 मिलता है। अगर हम 12 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है 6। ओके, और डिविजिबल है 2। ये 6 2 के साथ डिवाइड होता है? यस, इन विच टाइम 3 टाइम्स। नाउ दैट 3 इज द प्राइम नंबर। सो हम क्या करेंगे? 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, हमें क्वेश्चन मिलता है 1। सो नाउ विच इज द फैक्टर्स ऑफ 48? 2 2 2 2 एंड 3। 2 2 2 2 and 3. This is the factors of 48. Okay, now which is the number is common? The common factors of 20 and 48. 48 और 20 में कॉमन क्या है? हमने सर्कल किया है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं, 5 नहीं है कॉमन। 2 कॉमन है क्या है? ये भी 2 नो। सो व्हाट इज द कॉमन? 2 and 2। अभी जो कॉमन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमारा HCF 4। HCF ऑफ 20 and 48 इज द 4। क्या है इसका HCF? 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, 24 and 36। सो 24 के क्या फैक्टर्स निकले हैं? 2 2 2 and 3। सो नाउ दे आर टेक आउट हियर। यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको 24। अगर हम 24 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है 12। कितना क्वेश्चन मिलता है? 12। नाउ 12 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है? 6 मिलता है। नाउ हम 2 के साथ 6 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है 3। नाउ 3 इज द प्राइम नंबर। सो हम 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन 1 मिलता है। सो 24 के फैक्टर क्या निकले हैं? 2 2 2 3। 2 2 2 एंड 3। नाउ 36। 36 इज द इवन नंबर है। 36 भी इवन नंबर है। अगर 2 के साथ हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है? 2 1 2 1 6 and how much? 8। 2 8s are 16. So how much? 18 is the quotient and 2 is the divisible. ये 18 भी 2 का डिविजिबल है? यस। विच टाइम? 9 टाइम। 9 होता है। अगर 2 को 18 के साथ डिवाइड करते हैं तो 9। नाउ दैट 9 इज द इवन नंबर। तो हम 9 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? ऑड नंबर है। सॉरी, 9 इज द ऑड नंबर। सो ऑड नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है तो हम ये 3 के साथ करेंगे। सो 3 1 3। अगर 3 के साथ हम 9 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है? 3। ओके, नाउ 3 इज द प्राइम नंबर। सो 3 को 3 के साथ करेंगे और क्वेश्चन कितना मिलता है? 1। सो 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 3 3। 2 2 3 3। नाउ विच इज़ द नंबर इज कॉमन? कॉमन क्या है इसमें? 2 इज़ द कॉमन, 2 इज़ द कॉमन एंड 3 इज़ द कॉमन। अभी हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 12। सो HCF ऑफ 24 एंड 36 इज द 12। क्या है इसका HCF? 12 है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। विच इज एग्जाम्पल नंबर 5? 72 and 90. Now we take out the factors of 72 and 90. 72 is the इवन नंबर। 72 इवन नंबर है तो हम 2 के साथ उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 के साथ 72 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 2 3 6, 1 इज रिमेन, 2 इज डाउन। नाउ 2 6 12। सो हमें क्या मिला है? क्वेश्चन 36। 36 और ये 2। नाउ 36 2 के साथ डिवाइड होता है? यस।
36 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2, 1 एंड 6 8। सो हमें क्या मिलता है 2 यहाँ पे और यहाँ पे क्वोशंट इज 18। नाउ 18 इज प्रेजेंट इन टू टेबल, यस, इन विच प्लेस 9 प्लेस। तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है 9। नाउ दैट 9 इज द ऑड नंबर, सो 9 हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है 3। नाउ 3 इज द प्राइम नंबर, 3 के साथ डिवाइड होगा और हमें क्या मिलेगा क्वेश्चन 1। सो 72 के फैक्टर्स क्या है 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3। नाउ 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। अगर 2 के साथ 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 सा 8, ओके, 1 0 एंड 2 5 सा 10। तो हमें क्या मिलता है 45। 2 के साथ डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 45। अभी दिस इज द ऑड नंबर, 45 क्या है ऑड नंबर है, तो हम 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 45, 3 1 सा 3, 1 5, सो 3 5 सा 15। सो क्या मिला है हमें क्वेश्चन 15। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 क्वेश्चन। नाउ 15 is present in 3 tables, yes, in which place 5 place। now 5 is the prime number, so हम 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलता है क्वेश्चन 1। सो 90 के फैक्टर्स क्या है 2 3 3 5, 2 3 3 5, this is the factors of 90। now which is the number is common, 2 is the common, 3 is the common and 3 is the common। so now we will do multiplication which is the common, जो भी common है उसका multiplication करेंगे। 2 into 3 6 and 6 into 3 18। so what is the SCF of 72 and 90? SCF of 72 and 90 is the 18। now example number 8, 165 and 220। first is the 165। now that 165 this is the odd number। ये क्या है odd number है क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, so 5 is the odd number। now we'll check 3 के साथ डिवाइड होता है क्या 165, क्योंकि 2 के साथ नहीं होता है। 165 is the odd number, 65। so 3 5s are how much, 3 5s are 15, 1 is balance and 1। now 3 5s are 15। so हमें क्वेश्चन कितना मिला है 55 और किसके साथ डिवाइड किया है 3 के साथ। now that 55 is divided by 5, yes, 3 के साथ तो नहीं होगा, ओके, सो 5 के साथ होता है तो हमें क्वेश्चन मिलता है 11। सो नाउ यू चेक 5 डिवाइडेड बाय 55, सो 5 1 सा 5 एंड 5 1 सा 5, सो हमें कितना मिलता है 11। नाउ दैट 11 इज द प्राइम नंबर, सो 11 एज इट इज़। तो हमें फैक्टर्स क्या मिले हैं 165 के 3 5 11, 3 5 11, दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 165। नाउ 220, 220 के हम क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। दिस इज द इवन नंबर, ये क्या है इवन नंबर है। 2 डिवाइडेड बाय 220, सो नाउ 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 0। सो हमें क्या मिला है क्वेश्चन 2 के साथ डिवाइड करने के बाद 110। नाउ दिस 2 आल्सो
इवन नंबर, ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे 110. सो 2 5 10, 1 एंड 2 5 1. सो कितना मिला है 2 के साथ डिवाइड करने के बाद 55. नाउ दैट 55 डिवाइडेड बाय 5 हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। ये 55 5 के साथ डिवाइड होता है, तो हमें क्वेश्चन कितना मिला था, यहाँ पे 11 मिला था। नाउ दैट 11 इज द इवन नंबर, सो हम क्या करेंगे 11, और हमें क्वेश्चन कितना मिलता है 1. सो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 220, 2, 2, 5 एंड 11. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 220. कौन से फैक्टर्स है 2, 2, 5 एंड 11. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 220. नाउ विच इज द कॉमन, 5 इज द कॉमन एंड 11 इज द कॉमन. इसमें कॉमन क्या है 5 और 11. सो नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कितना आता है 5 इंटू 11 55. एचसीएफ ऑफ 165 एंड 220 इज द 55. क्या है आप, ये है इसका एचसीएफ 55. नाउ विच इज द होमवर्क फॉर यू. एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6 and 7. This is the homework for you. And now I will show you one activity. Okay. यहाँ पे क्या है, look at the page number 79. Pick the factors from the basket and return them in the first column. Write the factor missing in basket in the second column. हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिए 35, 48, 28, 50, 49, 99, 31, इसके क्या निकालना है, हमें फैक्टर्स निकालना है. और जो फैक्टर्स ये बास्केट में दिए हुए हैं, मतलब इस 35 के फैक्टर निकालने के बाद जो मैच यहाँ पे होता है वो यहाँ लिखना है, और जो 35 के फैक्टर है लेकिन इस बास्केट में नहीं दिए है वो यहाँ पे लिखना है. सो 1 आई एम सॉल्विंग, एक 35 मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी के आपको सॉल्व करना है. ओके, देन आफ्टर दैट यू मेक ऑन द प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पे बनाओ. सपोज यू नॉट हैव एनी प्लेन पेपर, सो यू मेक ऑन द एनी पेज. ये आपको प्लेन पेपर पे नहीं तो कोई भी पेज पे बनाना है. एंड देन यू सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. सो वेयर इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, आपकी जो HGS 4th क्लास का जो ग्रुप है वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको ये सेंड करना है. सो नाउ आई एम सॉल्विंग दैट 35. सो 35 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 79 पे है ये. 35 के फैक्टर्स क्या है, 35 इज द ऑड नंबर है, ठीक है. अगर हम 3 के साथ 35 को डिवाइड करेंगे, so first is the what is the factor, a factor. First see what is the definition of factor. मतलब क्या आता है, a factor of number divide the number without leaving the remainder. मतलब हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका रिमाइंडर 0 मिलता है, तो हम उसको फैक्टर्स बोलते हैं. 35 क्या है, ऑड नंबर है, तो 35 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, 3 के साथ हम करके देखेंगे. सो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3. ओके, सो नाउ 0 5, नाउ 3 1 3, 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब 3 फैक्टर्स है क्या 35 का, नहीं है. सो 35 के फैक्टर्स आते हैं 1 इटसेल्फ नंबर, देन 5 के टेबल में 7 टाइम पे आता है, 7 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, मतलब 2 1 5 7 एंड 35. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 35. 35 के फैक्टर्स क्या है, 1 5 7 एंड 35. नाउ हमें क्या देखना है, जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं 35 के फैक्टर्स क्या है, 1 3 1
5, 7 एंड 35। ये है हमारे फैक्टर्स निकले हैं 35 के। हमें बास्केट में देखना है कि ये कौन से नंबर यहाँ पे है। सो 1 नंबर इज़ हियर, यस, सो हम यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे। 5 है क्या देखेंगे, 5 है क्या, यस, 5 आल्सो इज़ हियर। 7 है क्या, यस, 7 आल्सो हियर। नाउ 35 है क्या बास्केट में, मीन्स दिस इज द मिसिंग फैक्टर्स। ये क्या है, मिसिंग फैक्टर्स है। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। देन यू सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर विथ योर नेम्स एंड विथ योर फोटो। ओके, I hope all of you nicely understood, and thank you and have a nice day.